Okay, last class we discussed about dual property of electromagnetic radiation. Now today we are going to discuss atomic spectra. Atomic spectra formed by the electromagnetic radiation or white light. Here the terms are very important. First one is what is spectrum. Second one is continuous spectrum. Third one emission spectrum, absorption spectrum, and spectroscopy and line spectra. These terms are very important to understand the atomic spectrum. After this, we will go to discuss hydrogen spectrum. Okay, first one, what is spectrum? Spectrum means here the speed of light depends upon the nature of the medium. When this light is passed from one medium to another medium, then this light will be bends depend on the nature of the मीडियम तो लाइट पास होने के टाइम पे लाइट कोई भी मीडियम से पास होगा बट द नेचर ऑफ द लाइट इज पासिंग from the medium. It will depends on the nature of the medium through which it is passes. As a result, the beam of light is deviated or refracted. तो वही क्रॉस बेंड होने का. As a result, the beam of light is deviated or refracted from its original path as it passes from one medium to another medium. It is observed that when a ray of white light is passed through a prism, when a ray of white light is passed through a prism, the wave with shorter wavelength bends more than the one with a longer wavelength. Means when light passes from one medium to another medium, and here the nature of the light refracted and deviation will be depend on the nature of medium. Here when white light is passed through a prism, ये prism होता है तो prism से white light को pass करेगी तो this light will bends towards different depend on the nature of medium. Here the wavelengths means here the wavelength of shorter wavelength bends more than the one with a longer wavelength. Shorter wavelength ज़्यादा bend होगा comparison with longer wavelength, and a ray of white light is spread out into a series of color bands is called spectrum. A series of color bands is known as spectrum. Means white light को prism से पास करने के बाद ये यहाँ पे एक फोटोग्राफिक प्लेट को अरेंज करो तो ये कलर लाइन सीरीज फॉर्म होगा. दिस कलर लाइन सीरीज इज नोन एज स्पेक्ट्रम क्योंकि यहाँ पे लाइट वाइट लाइट होगा, नंबर ऑफ कलर्स ये लाइट में मिक्स होगा तो नंबर ऑफ कलर्स में ये कलर का एक कलर का डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होता है. तो वाइट लाइट प्रिज्म से पास होने के बाद एक कंटिन्यूस कलर्स लाइट को फॉर्मेशन करेगा. दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रम. इन दिस स्पेक्ट्रम हियर shorter wavelength waves or light will bend to more than longer wavelength. Next, तो ये फोटोग्राफी प्लेट अरेंज करने का. फोटोग्राफी प्लेट पे एक कंटिन्यूस डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट मिक्सड कलर लाइट कंटिन्यूस फॉर्म होता है तो ये स्पेक्ट्रम होता है. राइट, तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम. तो स्पेक्ट्रम फॉर्म होने के बाद लिसन the light of red color which has longest wavelength is deviated the least while the violet light which has shortest wavelength is deviated the most. The spectrum of white light that we can see range from violet at means visible light का range explain कर रहा हूँ. Visible light, okay, here
The white light, visible light, that ranges from violet at 7.5 into 10 raised to 14 hertz. रेंजेस वायलेट कलर का रेंज कितना होगा 7.5 इंटू 10 रेज टू 14 हर्ट्ज रहेगा एंड रेड कलर लाइट का frequency, not wavelength, this one is frequency, 7.5 into 10 raised to 14 to 4 into 10 raised to 14 एडजस्ट रहेगा 4 into 10 raised to 14 रेड कलर का फ्रीक्वेंसी है और 7.5 into 10 raised to 14 वॉयलेट कलर का फ्रीक्वेंसी है। मतलब ये फ्रीक्वेंसी के बीच में जो लाइट होता है ये विजिबल लाइट होता है, तो ये विजिबल स्पेक्ट्रम होता है। तो ये विजिबल स्पेक्ट्रम फोटोग्राफिक प्लेट पे एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को फॉर्मेशन करे। स्पेक्ट्रम मीन्स white color light passes from prism, then white different color light will be obtained on the photographic plate, that is known as spectrum. This spectrum, in this spectrum, visible region is violet to red color. The violet color light frequency is 7.5 into 10 raised to 14 and red color frequency is 4 into 10 raised to 14. This can only we can see, and this light will form on the photographic plate as continuous spectrum. Continuous means there is no breaking. One color touches with the other color. Here, the continuous spectrum continuous because violet merges into blue, blue into green, and so on. A similar spectrum is produced when a rainbow forms in the sky. Rainbow के जैसे एक दूसरे कलर के साथ टच होगा तो वहाँ पे बीच में ब्लैक कलर शेड्स नहीं रहेगा, तो शेड नहीं होगा, तो इसलिए वो कंटिन्यूस फॉर्म होता है। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, तो शेड मीन्स यहाँ पे ऑब्जर्व करो ये व्हाइट लाइट है, लाइन लाइट फिर लाइन लाइट लाइन लाइट, तो ये डिस्क्रीट मैनर में है। तो ये ऐसा कंटिन्यूस होगा तो वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। एक्चुअली जो स्पेक्ट्रम है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है विदाउट पासिंग फ्रॉम एनी मॉलिक्यूलर एटम। ओनली प्रिज्म से व्हाइट कलर लाइट पास होने के बाद फोटोग्राफिक प्लेट पे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को फॉर्मेशन करेगा। स्पेक्ट्रम मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट्स ऑन द electro photographic plate, that is known as spectrum. The spectrum forms continuous, that's why there is no breaking. That's why that is known as continuous spectrum. Here the visible light range from violet to red. The frequency of this light is 7.5 into 10 raised to 14 to 4 into 10 raised to 14 hertz रहेगा। क्लियर? तो लाइट में से जो भी स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम फॉर्म होगा, कलर एक दूसरे के साथ मर्ज होता है, तो दैट इज नोन एज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम फॉर्म। लाइट पासिंग फ्रॉम द प्रिज्म देन इट विल फॉर्म स्पेक्ट्रम, and continuous spectrum means there is no breaking, continuous it will be formed, one color of light will merge with the other color light, that is known as continuous spectrum. And next one is emission spectrum and second one is absorption spectrum. This one is very important. Here this emission absorption spectrum means what? First one here, absorption spectrum absorption means the light, when the light passes from the atom or molecule, some of the electromagnetic radiation, some of the light will be absorbed by that substance and it will form a spectrum on the photographic plate. That's why that is known as absorption spectrum. Means atom or molecule will absorb specific color of lights from the continuous spectrum, क्योंकि एटम और मॉलिक्यूल के बीच में से लाइट पास होगा तो एटम में इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के लिए स्पेसिफिक लाइट वेवलेंथ ऑफ लाइट को ऑब्जर्व करेगा, तो बाकी जो लाइट है एक्सपीट होता है, जो एक्सपीटेड लाइट इज नोन एज अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो कुछ वेवलेंथ ऑफ लाइट एटम और मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट होने के बाद जो लाइट रिलीज होता है वो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एंड सेकेंड वन इज, ध्यान से ऑब्जर्व करो, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मीन्स आफ्टर absorption of light with the atom
एटम लाइट को ऑब्जर्व करने के बाद बाकी जो रिलीज करता है वो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसका ऑपोजिट। एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, एटम स्टार्टिंग में जो एनर्जी को ऑब्जर्व किया बाद में वो रिलीज करता है। जो रिलीज हुआ लाइट फोटोग्राफिक प्लेट पे एक ब्राइट कलर का लाइट, ब्राइट कलर लाइट, डिफरेंट डिफरेंट कलर है, ब्राइट कलर लाइट फॉर्म होता है, तो दैट इज नोन एज emission spectrum। emission means atom can release the energy, that is known as emission spectrum। atom can absorb energy from the light, that is known as absorption spectrum। very important point, absorption। एटम और मॉलिक्यूलर सैंपल में से लाइट पास करने से लाइट में से कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को एटम ऑब्जर्व करेगा, बाकी सब रिलीज करेगा। जो रिलीज हुआ लाइट पूरा फोटोग्राफिक प्लेट पे डिस्प्ले होगा। तो डिस्प्ले होने के टाइम पे क्या होगा, लाइट सॉरी सैंपल जो पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को ऑब्जर्व करने के बाद बाकी जो लाइट है यहाँ पे डिस्प्ले होगा। क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्व करो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, तो without any sample then light will form continuous spectrum on photographic plate, but after adding sample on the way of light then that sample will observe some particular energy of light, that's why that light will absent in the continuous spectrum। तो जो सैंपल कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम से जो लाइट ऑब्जर्व करता है वो यहाँ पे एब्सेंट होगा, पर्टिकुलर लाइंस फॉर्म होगा। इसका मीनिंग ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये फोटोग्राफिक प्लेट है, फोटोग्राफिक प्लेट पे ये लाइंस फॉर्म होगा। दिस लाइन मीन्स ब्लैक शेड है, तो यहाँ पे कुछ कलर नहीं है, क्लियर, यहाँ पे कुछ कलर नहीं है, तो ये गैप में तो कलर है, मतलब यहाँ का कलर, यहाँ का वेवलेंथ ऑफ लाइट कहाँ गया, एट सैंपल विल ऑब्जर्व दिस shade, this line here, the light wavelength will be observed by the sample, clear। सैंपल को ये जो लाइंस फॉर्म हुआ यहाँ पे जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट सैंपल ऑब्जर्व किया, राइट। नेक्स्ट इन द एमिशन स्पेक्ट्रम, so that's why this spectrum is known as absorption spectrum। absorption spectrum, very important। absorption spectrum, absorption means सैंपल लाइट को ऑब्जर्व करने के बाद जितना भी एनर्जी उसको चाहिए उतना ऑब्जर्व करके बाकी लाइट को रिलीज किया है, दैट इज नोन एज अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट वन एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, एमिशन, एमिशन मींस रिलीजिंग, किसमें से रिलीज होना चाहिए, सब्सटेंस में से रिलीज होना चाहिए। सब्सटेंस में से रिलीज एनर्जी कहाँ से रिलीज होगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम से जो पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑब्जर्व किया वही पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट विल बी रिलीज्ड इन द एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करो, यहाँ पे जो ब्लैक कलर शेड से मतलब यहाँ पे लाइट एब्सेंट हुआ, ये जो बीच का लाइट जो है ब्राइट कलर लाइट है, तो ये जो एब्सेंट हुआ लाइट एमिशन स्पेक्ट्रम में रिलीज होगा। तो रिलीज होगा तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो वहां पे क्या होगा, जो लाइट यहाँ पे एब्सेंट है यहाँ पे वो प्रेजेंट होगा। ये समझ में क्यों बता रहा हूँ, ये सब शेड से डार्क शेड, मतलब यहाँ पे लाइट नहीं है, एब्सेंट है, यहाँ पे भी लाइट नहीं है, यहाँ पे भी लाइट नहीं, ओनली दिस गैप हैविंग लाइट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो लाइट को ऑब्जर्व किया वही लाइट यहाँ पे एक्समिट होगा, तो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, मैक्सिमम स्पेस ब्लैक ही रहेगा, जहाँ पे जो लाइट सैंपल ऑब्जर्व किया वही लाइट यहाँ पे रिलीज होगा। मतलब इसको यहाँ पे फिक्स करेंगे तो फिर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट एब्सेंट हुआ यहाँ पे एमिशन में रिलीज होगा, क्लियर। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करने के बाद ही
एमिशन होगा, अब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो एमिशन नहीं होगा। अभी ये दोनों को फिक्स कर दो, एक कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मीन्स ऐसा फॉर्म होगा, ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, इसमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, absorption spectrum, emission spectrum, and this one is continuous spectrum. And spectrum, the light will pass it through the prism, then spectrum will be obtained. Clear? Okay. Absorption spectrum, emission spectrum, absorption spectrum, emission spectrum को ऐड करने के बाद कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए, क्योंकि ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, ये सैंपल से पास होने के बाद ये प्लेस में लाइट, ये प्लेस में लाइट, ये प्लेस में लाइट, ये प्लेस में लाइट ऑब्जर्व हुआ, ऑब्जर्व होने के बाद फिर एमिशन, जितना एनर्जी ऑफ लाइट को ऑब्जर्व किया, फिर वो लाइट को रिटर्न एक्सबिट करेगा, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रम। ओके, क्लियर, दिस इज राइट। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ऑब्जर्व होने के बाद एटम में क्या चेंजेस होगा, व्हेन लाइट passes फ्रॉम द सैंपल और एटम, some changes will be occurred in the atom or molecule। तो वहां पे क्या होगा, ये एटम है, this one is ground state, here is the electron, when light will pass through the sample or atom having subatomic particle electrons, this will gain energy from the electromagnetic radiation। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट विल बी ऑब्जर्व्ड बाय दिस इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम से स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट ये इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व करके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, दिस स्टेट इज नोन एज एक्साइटेड स्टेट। यहाँ से यहाँ तक तो कुछ वर्क किया, वर्क करने के लिए एनर्जी तो चाहिए, वो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम से ऑब्जर्व किया, व्हाइट लाइट पास होने के बाद इलेक्ट्रॉन विल एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। कब तक एक्साइटेड स्टेट में रहेगा, जब तक यहाँ पे लाइट पास होगा तब तक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में रहेगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम से कुछ वेवलेंथ तक, पर्टिकुलर वेवलेंथ तक लाइट को ऑब्जर्व किया। क्लियर? स्टॉपिंग टू पास द लाइट ऑन द सैंपल, तो सैंपल में से लाइट पासिंग को स्टॉप करेंगे तो क्या होगा, फिर एटम विल ट्राई टू गेट स्टेबल, यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में होगा तो अनस्टेबल रहेगा। तो जब तक इलेक्ट्रॉन एनर्जी पास होगा तब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा, एनर्जी पासिंग स्टॉप हुआ, अभी ये जो इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड स्टेट से फिर ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए एनर्जी ऑब्जर्व किया, फिर यहाँ से यहाँ तक आने के लिए एनर्जी क्या करना है, रिलीज करना है, एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए एनर्जी ऑब्जर्व किया, तो यहाँ पे जो फॉर्म होने वाला स्पेक्ट्रम ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रम फॉर्म होगा। फिर यहाँ से यहाँ तक ग्राउंड स्टेट तक पे आने के लिए एनर्जी जितना ऑब्जर्व किया उसमें से कुछ कम वेवलेंथ ऑफ लाइट को रिलीज करें, क्योंकि वर्क तो किया, वर्क करने के लिए तो कुछ एनर्जी तो चाहिए, यहाँ पे कुछ एनर्जी माइनस हो जाएगा, मीन्स मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है, उसके बाद मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद यहाँ पे जो वेवलेंथ ऑफ लाइट को ऑब्जर्व किया वो वेवलेंथ ऑफ लाइट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट पे आने के टाइम पे एनर्जी रिलीज होगा, दैट्स व्हाई दिस वन इज एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम मींस एक्चुअली दिखेगा नहीं है, ये फोटोग्राफी प्लेट रखेंगे तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स लाइट्स दिखेगा, तो वो उसके वजह से हम लोग उसको एक स्पेक्ट्रम नेम दिया, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम। तो ये अब्जॉर्प्शन एमिशन किसके वजह से हुआ, एटम में और मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ऑब्जर्व करके ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट जाएगा, उसके बाद एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आएगा, ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट जाने के टाइम पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट पे आने के टाइम पे एमिशन स्पेक्ट्रम फॉर्म होगा। एक्साइटेड एमिशन स्पेक्ट्रम को फिर कनेक्ट करेंगे तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम फॉर्म होगा कंपल्सरी, राइट। तो ये एमिशन अब्जॉर्प्शन occurred due to the electron absorbed by the energy by electron। तो ये एनर्जी लाइट को इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करके एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट में आएगा, इसके वजह से यहाँ पे एमिशन स्पेक्ट्रम, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फॉर्म होगा। तो ये जो
Energy of absorption of electron. Energy absorption by the electron depend on nature of the atom. Nature of atom or molecule. तो यहाँ पे हर एक एटम सेम वेवलेंथ ऑफ लाइट को ऑब्जर्व नहीं करेगा. यहाँ पे एक स्पेसिफिक पॉइंट है. Different type of atom, different type of molecules will observe different type of wavelength of light from the continuous spectrum or from electromagnetic radiation. तो एटम नेचर के ऊपर डिपेंड होते हैं. इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को ऑब्जर्व करें. इट मींस हियर every atom can form particular emission spectrum. emission spectrum से ही हम लोग यहाँ पे एटम को आइडेंटिफाई करते हैं. emission spectrum means particular atom can form particular emission spectrum. By this, the study of emission spectrum, we can identify or we can discover new elements in the universe. तो क्योंकि different atoms will observe different wavelength of light. तो मतलब different wavelength of light observe करेंगे तो emission होने के टाइम पे भी different wavelength of light emission होगा. तो अभी तक जितना डिस्कवर हुआ वो emission of light के साथ particular जर्नल्स रहेगा. तो जर्नल के साथ ये एमिशन स्पेक्ट्रम को कंपैरिजन करके देखेगा. अगर एमिशन स्पेक्ट्रम जितना डिस्कवर हुआ वो एलिमेंट से मैच होगा तो वो कौन सा एलिमेंट है उसको ऑलरेडी बता देगा. अगर कोई भी एलिमेंट के साथ ये जो एमिशन स्पेक्ट्रम मैच नहीं हुआ मतलब दैट एलिमेंट इज न्यू एलिमेंट. तो एलिमेंट डिस्कवर करने के लिए, एटम्स को डिस्कवर करने के लिए एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एटॉमिक स्पेक्ट्रम used to discover the new atoms by its emission spectrum. emission ही होगा, emission से ही डिपेंड होता है क्योंकि अब्जॉर्प्शन तो हर एक एटम तो करेंगे. अब्जॉर्प्शन करने के बाद वो कौन सा emission कर रहा है, कौन सा स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट emission कर रहा है. तो by the study of emission spectrum of the atom we can identify the elements, molecules, atoms, etc. Here is spectroscopy is used. The study of emission and absorption spectrum is known as spectroscopy. One of the chemistry branch, one of the branch of chemistry, spectroscopy. Spectroscopy only includes the spectrum. Which spectrum? Emission spectrum, absorption spectrum. Means atom को discover करने के लिए जो भी study होता है वो spectroscopy होता है. The study of emission spectrum and absorption spectrum. Absorption spectrum. तो emission रिलीज होने के बाद अब्जॉर्प्शन होने के पहले जो भी स्टडी होता है स्पेक्ट्रम के बारे में वो स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है. स्टडी ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्टडी ऑफ अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी. स्पेक्ट्रम इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी. हियर अनदर वर्ड, दिस वन इज अ लाइन स्पेक्ट्रम. लाइन स्पेक्ट्रम मीन्स कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है यहाँ पे. क्लियर? Continuous spectrum. This one is continuous spectrum. No breaking, no shadows, no dark lines are here present. That's why this one is continuous spectrum. But here emission spectrum, absorption spectrum having lines means shadows. Shadow means यहाँ पे light absent हुआ, यहाँ पे light absent हुआ, यहाँ पे light absent हुआ, यहाँ पे light absent हुआ. Right? Here light absent, ये light absent, ये light absent है. तो यहाँ पे shadows फॉर्म हुए. तो दिस स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होने दो, एमिशन स्पेक्ट्रम होने दो. देखने के लिए कैसे लाइन में से. दैट्स व्हाई दिस absorption emission spectrum are known as line spectrum. This one is continuous spectrum. Atoms can form only line spectrum. Line spectrum of atom, different atom forms different type of line spectrum. एक एक एटम का different लाइन स्पेक्ट्रम होता है. तो ये लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम को स्टडी करके एटम कौन सा है आइडेंटिफाई कर सकते. दिस वन इज स्पेक्ट्रोस्कोपी. स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम, एमिशन, एब्जॉर्प्शन इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी. लाइन स्पेक्ट्रम, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होने दो, एमिशन स्पेक्ट्रम होने दो. देखने के लिए लाइंस जैसे रहेगा तो दैट इज नोन एज लाइन स्पेक्ट्रम. क्लियर? आपको टेक्स्ट बुक में डायग्राम क्लियर दिया है. 2 डायग्राम्स है उसमें. वन इज emission spectrum, second one is absorption spectrum, and last one is line spectrum. Every atom specifically
वो न्यू एटम होने दो, ऑलरेडी डिस्कवर हुआ एटम होने दो, कंपल्सरी स्पेसिफिक लाइन स्पेक्ट्रम को फॉर्मेशन करेगा, स्पेसिफिक लाइन स्पेक्ट्रम से एटम को हम लोग डिस्कवर करते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग को आइडेंटिफाई करने के लिए फिंगरप्रिंट्स को जैसे यूज करते हैं, फिंगरप्रिंट से उनको क्या पता चलता है, ह्यूमन बीइंग को आइडेंटिफाई करने के लिए फिंगरप्रिंट्स यूज करते हैं। सिमिलरली हियर वी आइडेंटिफाई द एटम्स थ्रू द एमिशन स्पेक्ट्रम। तो ये एमिशन स्पेक्ट्रम को यूज करके एटम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर वो एटम ऑलरेडी डिस्कवर नहीं होगा तो वो न्यू एटम होगा। क्लियर? तो फिंगरप्रिंट्स से आइडेंटिफाई, फिंगरप्रिंट से ह्यूमन बीइंग को आइडेंटिफाई करते हैं, ह्यूमन बीइंग को आइडेंटिफाई करते हैं। सिमिलरली एटम को एमिशन स्पेक्ट्रम से आइडेंटिफाई करता है, नहीं तो लाइन स्पेक्ट्रम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम दिया है, डायग्राम में फर्स्ट वन अब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम है, सेकंड वन अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये दोनों को अगर कनेक्ट करके देखो आपको एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम दिखेगा। तो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ये एक्सपेरिमेंट है, एक बार आप टेक्स्ट बुक चेक करो, आपको क्लियर पता चलेगा। नेक्स्ट वन here, elements like rubidium, this line spectrum, this atomic spectrum first used by the Robert Bunsen scientist. Robert Bunsen scientist first investigators to use the spectra to identify elements. Robert Bunsen scientist ने स्पेक्ट्रा को यूज किया, स्पेक्ट्रा को यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड आउट किया। रॉबर्ट बंसन साइंटिस्ट। Robert Bunsen first used the atomic spectrum and identify the different elements. And the elements like rubidium, cesium, thallium, indium, gallium and scandium were discovered. तो यहाँ पे rubidium, cesium, thallium, indium, gallium and scandium elements were discovered by this line spectrum by the Robert Bunsen scientist. And next one here, now we are going to discuss the line spectrum of hydrogen. One of the most important topic is line spectrum of hydrogen. आपको यहाँ पर टेक्स्ट बुक में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, तो इसमें आपको इतना इन्फॉर्मेशन है ना फिर व्हाट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, टॉपिक इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम। इन दिस एटॉमिक स्पेक्ट्रम दिस टर्म्स आर यूज्ड। First one spectrum, continuous spectrum, emission spectrum, absorption spectrum, spectroscopy, line spectrum. These all will include in atomic spectrum. First, what is spectrum? What is continuous spectrum? What is absorption spectrum? What is emission spectrum? And what is spectroscopy? What is line spectrum? What are the uses of spectroscopy? By the use of spectroscopy, we can identify the different type of element, or we can discover the new elements by the spectroscopy. By the line spectrum of atom. That's why this all known as atomic spectrum. Now we are going to next class. We will discuss line spectrum of hydrogen. Line spectrum of hydrogen. Line spectrum of hydrogen आपको समझने के लिए कंपल्सरी ये टर्म्स का मीनिंग कंपल्सरी आपको पता होना चाहिए। एक बार टेक्स्ट बुक रीड करो और उसमें एक एक टर्म्स का इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज विजिबल लाइट, व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट एंड व्हाट इज द lowest frequency of light, what is the highest frequency of light, and the medium will depend the passing of the light. When light pass from the medium, one medium to another medium, it will be bends depend on its frequencies. Lower frequencies bends more than higher frequencies. And here spectrum will obtain when white light passes from the prism, then it will form a continuous spectrum on photographic plate. And continuous spectrum, and this one is continuous spectrum. Continuous spectrum means like VIBGR, different colors will attach, means merges with the other color. And continuous spectrum will form on absorption spectrum. The white light passes from the sample, it will absorb some light and it will forms like this spectrum. This is known as absorption spectrum. And emission spectrum, emission means absorb the energy, it will release it and forms one
spectrum on the photographic plate, that is known as emission spectrum. Study of these two is known as spectroscopy. Line spectrum, the light will absent on the continuous spectrum, that is known as line spectrum. Every atom will form particular specific line spectrum. By the line study of line spectra or spectroscopy, we can identify the new elements or discover new element and identify the elements. Next, spectrum of लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। एक याद रख लो, कोई भी एटम होने दो, अभी तक पीरियडिक टेबल में 119 और 118 एलिमेंट डिस्कवर किया है, एक्चुअली 119, तो एवरी एटम कैन फॉर्म स्पेसिफिक लाइन स्पेक्ट्रा, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स, ह्यूमन बीइंग का फिंगरप्रिंट से ह्यूमन बीइंग को जैसे आइडेंटिफाई करता है, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, by using line spectrum of atom we can identify the elements. This is the very important topic. Based on all this topic, next we will discuss line spectrum of hydrogen. उसके बाद बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कशन करना है। ओके, इसका बेस न्यूमेरिकल्स होगा, तो न्यूमेरिकल आफ्टर डिस्कशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन का डिस्कशन करने के बाद अब एक 1 और 2 न्यूमेरिकल्स रहेगा, और न्यूमेरिकल को सॉल्व करके फिर बोर एटॉमिक मॉडल के बाद डिफरेंट टॉपिक we will discuss.